Good morning, students. Good morning. I'm Anurag Singh in front of you to teach the topic ellipse, in which last video I was explained different part of ellipse, in which I was discussed about the axis, vertex, latus rectum, eccentricity, and many more things about the ellipse. First of all, I was giving some brief about the ellipse. First of all, axis, second vertex, next center, next latus rectum, eccentricity, next it's okay. Some basic information about the ellipse. Oh, sorry. Next point is what? Equation. And point number 7, relations. Is that clear? First of all, I am giving a figure for the horizontal ellipse. X-axis, Y-axis, point number A, B, P and Q. In the last video, I was given different these things. एक छोटा सा नॉलेज में फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द इलिप्स? उसमें मैंने आपसे बताया था देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स F1 and what? F2. These are two fixed points. A line passes through these two fixed points is known as axis of the ellipse. That means a line which passes through the focus of ellipse is known as axis of the ellipse, and this axis intersect the ellipse at 2 points A and B. These 2 points are known as vertex of the ellipse. दोनों पॉइंट्स फिर से क्लियर हो गए. There are 2 points, one is F1 and second is F2. These 2 points are fixed, they are known as focus. Second thing, a line which passes through the focus is known as axis of the ellipse. Third point, if the line passes through the focus and intersect the ellipse at 2 points, they are known as A and B. Then points A and B are now vertices of the vertex of the ellipse. Next, center. The midpoint of focus. Midpoint of focus is known as center of the ellipse. Next, latus rectum. Next is what? Latus rectum. What is latus rectum? A line which is perpendicular to the axis. Is that clear? And passes through the focus. Is known as latus rectum. Next is eccentricity. Eccentricity is the relation between center to focus and center to vertex. That means इसका फार्मूला हमने आपको दिया था eccentricity E is equal to C upon E. Therefore, C upon A. This implies C is equal to AE, और उसी के बेसिस पे आपको फोकस का कोऑर्डिनेट मिला था AE, 0. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ इलिप्स. देयर आर 2 इक्वेशंस. One equation for the horizontal ellipse and second equation for the vertical ellipse. They are same for seeing purpose. X square upon A square plus Y square upon B square is equal to 1. In first condition, A is greater than B,
and in second condition A is less than B. This is horizontal ellipse and that is known as vertical ellipse. Is that clear? Next thing is what? Relation. First and most important relation. एक रिलेशन मैंने आपको दिया था बेटा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। कल की क्लास का वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। वेयर a इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू वर्टेक्स एंड b इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आउटर पॉइंट। क्लियर? ये दोनों डिस्टेंसेस है। दिस इज नोन एज a एंड दैट लेंथ इज नोन एज b। c क्या है? सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस है और c की वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है? a। दैट मीन्स वी कैन राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ c। लुक हियर, अगर मैं इन दोनों को एक साइड कर लूं तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, वेयर a स्क्वायर इज कॉमन, 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। दैट मीन्स b स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप between A, B and eccentricity. Most important relationship between A, B and eccentricity। इसको मैं स्टार कर दे रहा हूं और खूब अच्छे से लर्न रखना। Is that clear? Next thing, eccentricity is always, E is always less than 1। eccentricity की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, बिकॉज इसेंट्रिसिटी में क्या है? रेशियो है बिटवीन सेंटर टू फोकस एंड सेंटर टू वर्टेक्स। ध्यान दो, सेंटर टू फोकस की लेंथ छोटी दिख रही है, सेंटर टू वर्टेक्स की लेंथ बड़ी दिख रही है। मतलब C इज लेस देन A, C इज लेस देन A और इसेंट्रिसिटी कहता है बेटा C अपॉन A। दैट मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो इन दैट केस इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। इज दैट क्लियर? अब इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो आपको करना है। इज दैट क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेटा? इससे बढ़ के कुछ है नहीं इसेंट्रिसिटी का टॉपिक पे, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम एक अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आई होप शायद यू हैव 20 क्वेश्चंस इन योर टेक्स्ट बुक, उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको करना है। क्लियर? जो नो, चलो रफ कर देते बेटा। सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से लर्न रखना, बस बाकी कुछ दिक्कत है नहीं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 11.3। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गिविंग अ ब्रीफ नॉलेज फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रॉम 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है बेटा? यू नीड फोकाई। Point number 2, the vertex. Point number 3, length of major axis. Length of major axis. Point number 4, minor axis. Length of minor axis. Point number 5, eccentricity. Point number 6,
length of latus rectum. Okay guys, in exercise number 11.3, from question number 1 to 9, we need these things. First is what? Foci. Second, vertex. Third, length of major axis. Fourth, length of minor axis, eccentricity, and the length of latus rectum. I have given all these parts in the last 2 videos. पिछले वीडियो में और थोड़ा सा ब्रीफिंग इस वीडियो में भी मैंने आपको दिया है. इन्हीं के बेसिस पे आपको इनके फार्मूले हैं, सबका स्पेशल फार्मूला है. अगर आपको फार्मूले याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो पिछला वीडियो एक बार देख लो आप, उसमें सारे फार्मूले मैंने आपको दे दिए थे. उसको बहुत केयरफुली लर्न कर लेना. और इसी के साथ मैं एक छोटा सा पीडीएफ भी अटैच कर दे रहा हूं वीडियो में, उस पीडीएफ को देख लीजिएगा, आपको सारे फार्मूले अवेलेबल हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 36, x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. इक्वेशन ऑफ इलिप्स. यू नीड दीज थिंग्स. बेटा जब भी इक्वेशन गिवन हो तो सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि गिवन इक्वेशन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके वैल्यूज को, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लो. तो पहला वर्ड आपका आएगा कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देयरफॉर लुक हियर, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए. यहाँ एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है? ए स्क्वायर. और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? 36. दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36. इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग, y square upon b square, denominator of y square is b square, and here denominator of y square is what? 16. That means b square is equal to 16. After that, a is equal to 6 and b is equal to 4, where a is greater than b. Is that clear? And if a is greater than b, therefore we can say that ellipse is horizontal. अगर इलिप्स हॉरिजॉन्टल है तो जो भी फार्मूला एप्लीकेबल होगा इसमें वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फार्मूला एप्लीकेबल होगा. उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड इसेंट्रिसिटी, बिकॉज इसेंट्रिसिटी फोकस में भी रिक्वायर्ड है, वर्टेक्स में भी रिक्वायर्ड है. जहां जहां रिक्वायर्ड है वो सबसे पहला वर्क हमारा ये होता है कि हम क्या फाइंड आउट कर ले? इसेंट्रिसिटी. और इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको एक रिलेशन दिया था. सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था बेटा. फिलहाल इसेंट्रिसिटी का यूजिंग द रिलेशन, हम रिलेशन यूज करेंगे. यूजिंग द रिलेशन, क्या रिलेशन था बेटा अपना? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. इसी रिलेशन को यूज करेंगे और इसेंट्रिसिटी फट से निकाल लेंगे. अगर मुझे इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है बेटा? 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना है? 36 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. इज दैट क्लियर? 36 को ट्रांसफर ले लो. 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर. देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16 by 36. एलसीएम लो बेटे. ई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 by 36. देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 16 कितना आएगा? 20 by 36. 5
sorry 4 5 ja 4 9 ja, therefore E is equal to root 5 by 3. Eccentricity is known. Now first of all you need foci. AE comma 0 and माइनस ए कॉमा 0. शॉर्टकट में हम इनको लिख सकते हैं बेटा प्लस माइनस ए कॉमा 0. इज दैट क्लियर? वन फॉर पॉजिटिव, सेकेंड फॉर नेगेटिव, दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमने क्या लिख दिया? प्लस माइनस ए कॉमा 0. दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज व्हाट? ए इज 6 इंटू ई root 5 by 3 comma 0. 3 2 ja 6, that means plus minus 2 root 5 comma 0. Finished? आ गया ना? बहुत आसान है. Second thing is what? Vertex. Second thing, vertex. Vertex कितने थे बेटा? प्लस माइनस a कॉमा 0. वर्टेक्स का फॉर्मूला याद करो एक बार, a कॉमा 0 और इस साइड में माइनस a कॉमा 0, दोनों को कंबाइंड कर दिया तो क्या मिल गया? प्लस माइनस a कॉमा 0. अगर मैं उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो प्लस माइनस a इज व्हाट? 6 कॉमा 0. फिनिश्ड? नाउ पॉइंट नंबर 3, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. चलो श्रेयांश, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? या 2a, दैट मीन्स 2 into 6 is equal to 12. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. चलो कार्तिकेय, now you can explain what is the formula for length of minor axis. Yeah, very good. Yeah, perfect. कितना आया बेटा? 2b, that means 2 into value of b is what? 4, that means answer is what? 8. Next, eccentricity, which we have already find. Point number 5. Is that clear? And last, length of latus rectum. Point number 6. Length of latus rectum. That is equal to 2b square upon a. What is formula for length of latus rectum? 2b square upon a. After giving the value of 2b square upon a, that means 2 into b square is 16 upon a is what? 6. 2 3 ja 6, that is 16 by 3. These are the final answer. Foci. Answer number 1, length of major vertex. Answer number 2, my major axis, minor axis, and length of latus rectum, and what? Eccentricity. All these parts are finished. Is that clear? Any doubt बेटा? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? फिर से एक बार आप रिवाइज करके देख लो. हमने क्या किया? इक्वेशन लिखा, इक्वेशन को कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यू मिली. ए और बी की वैल्यू से हमें ये पता चल गया कि इलिप्स कौन सी कैटेगरी का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो दैट मीन्स ऑल द फार्मूला विच इज एप्लीकेबल इज ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल. फॉर हॉरिजॉन्टल यूजिंग द, अब हमें आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना था? रिलेशंस यूज करना था. वो हमने रिलेशंस यूज कर लिया है. रिलेशंस क्या थे बेटा उसके? अगर रिलेशंस की बात करते हैं तो रिलेशंस आर व्हाट? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. उस रिलेशन को यूज करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया?
इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। क्या फाइंड आउट कर लिया? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, विच इज द आंसर फॉर पॉइंट नंबर 5। क्लियर? एंड बाय यूजिंग इसेंट्रिसिटी वी विल गेट एवरीथिंग। फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0, वैल्यूज पुटअप किया, फोकस का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट वर्टेक्स चाहिए था, वर्टेक्स इज व्हाट? प्लस माइनस ए कॉमा 0, उसकी वैल्यू पुटअप किया, आंसर आया। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। ऑल द पार्ट्स आर फिनिश्ड। क्लियर? अभी भी कोई डाउट है आपको? अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बेटा तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके? Okay students, I am going to take another question, that is question number 8. 16x square plus y square is equal to 16. This question also required these parts. Is that clear? First of all, the given equation is not in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका फार्मूला क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1। और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है? 16। और दूसरी चीज, कंडीशन जो स्टैंडर्ड फार्मूले की है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 1। और इस क्वेश्चन में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 16, और वाई स्क्वायर का तो मान लो है। दोनों का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे चेंज करना पड़ेगा। चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हमारा फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे, फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। राइट ना? तो चेंज करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर हो उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 16। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? यही आएगा। 16 एक्स स्क्वायर बाई 16, तो 16 से 16 कट गया, बचा एक्स स्क्वायर, उसका डिवीजन 1। यहाँ पे कुछ है नहीं तो वाई स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे भी 16 से 16 कैंसिल, बचा क्या? 1। राइट ना? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको क्या कर देंगे? कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर कर दिया। कंपेयर करेंगे बेटा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। हियर ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, दैट मीन्स वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स का फिगर आपको तो पता ही होगा, फिर भी नहीं अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आई एम गिविंग नेक्स्ट। दिस इज द वर्टिकल इलिप्स। इज दैट क्लियर? अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें इसी पे फाइंड आउट करनी है। वर्टिकल, अब मतलब हाँ, खास बात तो ये है कि अब जितने भी फार्मूले एप्लीकेबल होंगे वो सारे के सारे फार्मूले आपके वर्टिकल वाले लगेंगे। तो रिलेशंस यूज करेंगे, यूजिंग द रिलेशन, सब एकदम फिक्स है। यूजिंग द रिलेशन, क्या रिलेशन है बेटा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बस पोजीशंस बदल गई, जहां ए था वहां बी आ गया, और जहां बी था वहां पे क्या आ गया? ए आ गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर into 1 minus c square. After substituting the values of these parts, 1 is equal to 16, 1 minus e square. Simplify करेंगे बेटा, 1 by 16 is equal to 1 minus e square. ट्रांसफर लेंगे तो e square is equal to
E square is equal to 1 minus 1 by 16. Therefore, E square is equal to 15 by 16. Is that clear? Therefore, E is equal to root 15 by 4. This is your answer number 5. Completed? इसेंट्रिसिटी आपका आ गया. अब इसेंट्रिसिटी अगर मिल गई है बेटा तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मेन तो वही है. फर्स्ट फोकाई फार्मूला प्लस माइनस फिनिश्ड. इसका फार्मूला लगेगा कौन सा वाला? वर्टिकल इलिप्स का. व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्टिकल इलिप्स फोकाई? 0 प्लस माइनस BE. 0 plus minus B. Now substitute these values. 0 plus minus B. B is what? 4 into root 15 by 4. Finished? Cancelled? 0 plus minus root 15 is your foci. Done? That is your answer number 1. Now second thing, वर्टेक्स. इस बार वर्टेक्स यहां और यहां होगा, देख रहे हो ना आप. इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, B और इसका क्या होता है बेटा? 0, माइनस B. दैट मीन्स वर्टेक्स बनेगा आपका, वर्टेक्स इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस B. दैट मीन्स 0, प्लस माइनस द वैल्यू ऑफ B इज व्हाट? 4. वर्टेक्स. That is your second answer. Any doubt? Now, length of major axis. Point number 3. Length of major axis. Which axis is known as major axis? Look here. यहाँ पे ये major axis का काम करेगा. ये लेंथ है B और ये लेंथ है B. लेंथ की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट माइनस B है, बट लेंथ इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. देयरफॉर ये भी B होगा और ये भी B होगा, तो टोटल कितना हो गया? 2B. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. इज दैट क्लियर? एनी डाउट? थर्ड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. लेंथ ऑफ minor axis. Which axis is known as minor axis? This axis. Look here. ये एक्सिस कौन सी है आपकी? माइनर एक्सिस, जिसमें ये कोऑर्डिनेट होता है A, 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -A, 0. अगर मैं लेंथ की बात करूं तो दिस इज A लेंथ एंड दैट इज आल्सो A लेंथ. तो टोटल कितना आया? 2A. So that means length of minor axis is equal to 2A is equal to 2 into 1 is equal to 2. Done? Now, eccentricity you have already find. Point number 5. Now, answer number 6. या चलो 5 लिख देते हैं. E is equal to root 15 by 4. E is equal to root 15 by 4. Now point number 6. Length of latus rectum. Length of latus rectum. Length of latus rectum is equal to 2A square upon B. Just imagine, उस फॉर्मूले में क्या था? हॉरिजॉन्टल इलिप्स में 2B स्क्वायर अपॉन A. क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया. इलिप्स इस बार कौन सा आ गया? वर्टिकल आ गया. और वर्टिकल इलिप्स आ गया तो A के प्लेस को कौन रिप्लेस कर दिया? B रिप्लेस कर दिया. तो फार्मूला क्या बन गया? 2B स्क्वायर 2A स्क्वायर अपॉन B. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर एंड B स्क्वायर. दैट इज 2 into 1 square, sorry, A square is already 1 divided by B square. B is equal to what? 4. कैंसिल करेंगे बेटा, 2 2 जा 4. तो लेंथ ऑफ LR
is equal to 1/2. That is your final answer for question number 1 to 9. अब 1 to 9 में इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। एक वो क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरा वो क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होता है। जब इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज़ ये थी 1 to 9 में या तो इलिप्स आपका वर्टिकल होगा या तो इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल होगा। मैंने आपको दोनों टाइप के इक्वेशन सॉल्व करा के दे दिए कि वर्टिकल इलिप्स अगर है तो कैसे सॉल्व करना है और हॉरिजॉन्टल इलिप्स अगर आपके पास है तो कैसे सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस को केयरफुली कर लो बेटा, एक बार पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, वीडियो को देख लो, रिवाइज कर लो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 1 to 9 आपकी एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, उसके आंसर्स को मैच करो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमसे डिस्कस करो। आई एम अवेलेबल ओनली फॉर यू। ओके, नेक्स्ट okay students, after giving the explanation for question number 1 to 9, I am here to take the explanation from question number 10 to 12. From 10 to 12. Find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse by using the information vertex and foci. You have two information, vertex and the second information, foci. Vertex is given plus minus 5 and foci is plus minus 4. Plus minus 5 comma 0 and foci is plus minus 4 comma 0. Is that clear? You have two informations. One is what? Vertex, and second is what? Foci. By using these two information, find the equation of ellipse. Find the equation of ellipse. Is that clear? सिंपल सा है बेटा एकदम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देख के आपको डिसाइड करना है कि आपका इलिप्स कौन से फॉर्मेट का है। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट which type of ellipse is here. Vertex is 5, 0. That means plus minus number comma 0. Y-axis is 0. Therefore, this is horizontal ellipse. Which ellipse? और इसका अगर देखेंगे फोकाई की बात तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। अगर इन दोनों को ब्रीफिंग करेंगे बेटा तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्लियर? मतलब इतना हमारे दिमाग में आ गया कि ये इलिप्स का जो भी फिगर होगा वो कुछ फॉर्म का होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म का होगा। दैट मीन्स इसका रिजल्ट जो होगा इस इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। हाँ या ना? कोई डाउट? आई थिंक डाउट तो नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो उन्हीं इंफॉर्मेशन से पुल अप करना है आपको सारी चीजें। जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उन्हीं में से पुल अप करना है और उसके बाद फिर डिसाइड करना है। देखो कभी भी याद कर रखना मेरी बात को कि मैथ्स को जब सॉल्व करना स्टार्ट करो तो कभी भी डायरेक्ट अटैक मत करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उसको समझने की कोशिश करो, फिर दिमाग में उसको सिंप्लीफाई करो एक बार कि इसमें क्या क्या गिवन है और गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं और फिर सोचो हमें क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड को गिवन से कनेक्ट करो, लिंक करो, उसके बाद फिर ऑपरेशन स्टार्ट करो। तब आपको देखो कितना मजा आएगा सॉल्व करने में। इंटरेस्टिंग है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। जिसको आती है ना दिल लगा के आती है और जिसको नहीं आती ना वो कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो
चमड़ी भी उधार लेता, वही हालत मैथ्स की है। जिसको समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट एक बार, उसको बहुत मजे में आता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो फिर आप एकदम परेशान हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट समझने का एक ही फंडा है कि यू हैव परफेक्ट एंड डीप नॉलेज फॉर योर थियोरेटिकल पार्ट्स। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो कभी भी। थियरी को समझने की कोशिश करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ठीक क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे यार। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वी हैव टू इंफॉर्मेशंस, वर्टेक्स एंड फोकाई, एंड रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। गिवन इंफॉर्मेशन को हमने फार्मूले से मैच कराया तो प्लस वर्टेक्स को प्लस माइनस a,0 और फोकाई को प्लस माइनस a,0, तो इनकी इंफॉर्मेशन से देख लिया हमने ये हमारा एलिप्स कौन से रेंज का है, हॉरिजॉन्टल का है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, दैट मीन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशंस, अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करूं तो a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू व्हाट 5 एंड a इज इक्वल टू 4। अगर मैं a की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं 5 इंटू e इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स e इज इक्वल टू 4/5, हाँ या ना? We have two information. First is A, second is eccentricity. अगर A और eccentricity हमारे पास अवेलेबल है तो यूजिंग द रिलेशन, सिंपल सी बात है, यूजिंग द रिलेशन, रिलेशन क्या था बेटा अपना? b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², हाँ या ना? यही था रिलेशन। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, b² इज इक्वल टू a², कितना है बेटा? एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, आसान करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इसको ओपन कर दो, a² माइनस a² e², b² इज इक्वल टू a² की वैल्यू, a², द a is 5, therefore 5² माइनस a² कैन बी रिटन एज a की वैल्यू है बेटा 4, दैट मीन्स 4², 5² is 25 minus 16 which is equal to 9, that means b² is equal to 9, b is equal to 3। a भी मिल गया, b भी मिल गया। और अगर किस दुनिया का कोई भी इलिप्स का इक्वेशन सॉल्व करना है, अगर आपके पास a और b की वैल्यू मिल गई तो समझो आपको पूरा तो मिल गया, सब कुछ पूरा खजाना ही मिल गया आपको। तो हम डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² is equal to 1. Now substitute the value of a² and b². a is 5, therefore x² अपॉन 5² कितना हो जाएगा बेटा? 25 प्लस y² अपॉन b² is equal to what? 9 is equal to 1. This is your answer. x² by 25 प्लस y² by 9 is equal to 1. आसान था, बहुत ही आसान था। बस आपको क्या करना रहता है कि इंफॉर्मेशन को देखना रहता है, देख के उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करना रहता है कि कौन सा इलिप्स है, जो इलिप्स का इक्वेशन बने उसी का फार्मूला अप्लाई करते जाओ और वैल्यूज निकालते जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिलेशंस। जब आप फंसोगे तो आपको यही रिलेशन जो है निकालेगा बाहर। वैसे भी जानते हो कि रिलेशंस तो हमेशा निकालते हैं, पता लगा हम कहीं फंस जाते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी यही सब तो हमारे जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वही हमको वहाँ पे भी निकालते हैं, और मैथ्स में भी वही निकालते हैं बेटा, आपको रिलेशन से निकालते हैं। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको रफ कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेक न्यू क्वेश्चन 13 and 14. Question number 13 and 14 of your NCERT textbook, which contains
ends of major axis and minor axis. Question number 14, ends of major axis और क्या गिवन है बेटा, ends of minor axis. अगर मैं इन दोनों पर डिस्कस करता हूं, ends of major axis is given 0, plus minus 5 root 5 and ends of minor axis is plus minus 1, 0. फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है वर्टिकल इलिप्स की है या हॉरिजॉन्टल इलिप्स की है. देखो मेजर एक्सिस या तो इसको ये यहां पे होगी या तो यहां पे होगी. मेजर एक्सिस मान लो दो, इसने क्या दिया 0,5, मतलब y यहां पे मेजर एक्सिस इस वाले पे आएगी. मेजर एक्सिस अगर यहां हो गई तो दैट मीन्स ये तो फिक्स हो गया कि इलिप्स आपका कौन सा है, वर्टिकल इलिप्स है. मेजर एक्सिस या तो एक्स एक्सिस बनती है या तो वाई एक्सिस बनती है, यही है ना बेटा. ध्यान रखो ये अभी हमने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ये हमने 100% नहीं कर दिया कि किसी भी दुनिया के हर इलिप्स की मेजर एक्सिस या एक्स एक्सिस होगी. स्टैंडर्ड इलिप्स की मेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस होगी. बस स्टैंडर्ड की बात किया है मैंने, बाद में फिर एक्सिस चेंज भी होती है, उसका अलग फंडा है. लेकिन अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेजर एक्सिस अगर स्टैंडर्ड इलिप्स है तो या तो एक्स एक्सिस होगा या तो फिर वाई एक्सिस होगा. क्लियर. फिलहाल इसकी मेजर एक्सिस जो हमें दिख रही है वो वाई एक्सिस पे दिख रही है, और वाई एक्सिस पे अगर मेजर एक्सिस है तो दैट मीन्स हमारा जो इलिप्स बनेगा वो कौन सा बनेगा बेटा, ये बन गया. और देखने से ही ये लग गया कि इलिप्स कौन सा है बेटा, वर्टिकल इलिप्स. कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है. इन दोनों की इंफॉर्मेशन से पता चल गया इलिप्स आपका कैसा है, वर्टिकल है. एंड्स मतलब मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है. ये दिया है 0,√5 और ये दिया है 0, -√5. और अगर फार्मूले की बात करें तो उसका फार्मूला था 0, +-b. हाँ या ना. फिर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें तो यही माइनर एक्सिस इसकी बन रही है. इसके ये एंड्स जो हैं एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है. अगर मैं एंड्स की बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1,0 और इसका कितना है -1,0. फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो +-a,0. अगर मैं दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर दूं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन a is equal to 1, yes or no, and b is equal to √5. b is equal to what, √5. a और b दोनों मिल गए. हमारी यही तो जरूरत है, a और b ही हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है. a और b दोनों मिल गए बेटा तो देयरफॉर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स. क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, x² + a² + y² इज इक्वल टू व्हाट, 1. x² / a², मतलब दैट मीन्स x² / 1 + y² / b² इज व्हाट, 5 इज इक्वल टू 1. चाहो तो इसी पे छोड़ दो, या अगर आपका मन करे तो एलसीएम ले लो. 5x² + y² अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. 5 ट्रांसफर कर दो बेटा, 5x² + y² इज इक्वल टू 5. दिस इज योर फाइनल आंसर. या फिर इस पे भी अगर आप छोड़ देते हो यू विल रिसीव 100% मार्क फॉर दैट. इज दैट क्लियर. 13th and 14th की इंफॉर्मेशन इसी पे डिपेंड है. ओके समझ में आया बेटा.
हम कुछ करते नहीं है, सॉल्व नहीं करते हैं मैथ्स में, हम सिर्फ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग को प्रोसीड करते हैं, और उसी पे वर्क आप भी करो, हमेशा सुखी रहोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। What information is given for 15 and 16? Length of major axis. Question number 15. Length of major axis which is equal to 26 and foci is equal to plus minus 5,0। पहला स्टेप हम वहीं पे आएंगे जो हमारा था, अब तक जिस पे चले हैं उसी पे अब भी चलेंगे। पहले स्टेप में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a भी हो सकता है, 2b भी हो सकता है। इट मे बी 2a, इट मे बी 2b, दोनों हो सकते हैं ना, बट आई डोंट नो कि a है कि b है, मतलब कौन सा इलिप्स है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिसाइड नहीं कर पा रहा है। हम इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर देंगे। अब हम आएंगे दूसरे वाले पार्ट पे, क्योंकि वहां हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो अब हमें कहां पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे फोकाई इज इक्वल टू दिया है प्लस माइनस 5,0, दैट मीन्स वाई एक्सिस इज 0, तो तुरंत हमें पता चल गया ये फोकाई जो है प्लस माइनस a,0 के फॉर्म में है, क्योंकि दूसरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वर्टिकल इलिप्स के लिए फोकाई का फॉर्मूला होता है 0, प्लस माइनस b, तो उसमें तो 0 आगे होता है, इसलिए इसकी मैचिंग हो रही है, तो फोकाई हमें ये हो गया। इससे हमको पता चल गया कि दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्या पता चल गया बेटा कि इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज नॉट 2b, इट इज ओनली 2a। अब बोलो, पता चल गया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया बेटा, 2a। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन राइट नाउ, फ्रॉम द गिवन info, (2a) is equal to 26, therefore a is equal to 26/2, कैंसिल हो गया बेटा, a is equal to what, 13। yes or no? Second information, a is equal to 5, a is equal to 5। now substitute the value of a, या जाने दो, a ही मिल गया ना, बस इसी पे रुक जाओ। नाउ यूजिंग द रिलेशन, सम को टफ मत बनाओ, क्योंकि अगर मैं e की वैल्यू निकाल लेता a सब्स्टिट्यूट करके, तो इक्वेशंस जो वो रिजल्ट्स जो है वो फ्रैक्शन में आ जाते, तो उसकी हमें जरूरत तो थी नहीं। तो यूजिंग द रिलेशंस, बेटा इसमें रिलेशन कौन सा यूज करेंगे, जरा सोचो कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हैं। प्रांजल तुम ही बता दो यार, कौन सा रिलेशन यूज होगा, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? अच्छा हॉरिजॉन्टल वाला, वेरी गुड। अगर हॉरिजॉन्टल वाला रिलेशन यूज करेंगे तो वो रिलेशन है b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e², यही रिलेशन है ना। अगर इसको ओपन करेंगे बेटा तो b² इज इक्वल टू a² माइनस a² e², दैट मीन्स b² इज इक्वल टू a², a is 13, that means 13 square, minus a is equal to 5, that means 5 square, that for b² is equal to 169 minus 25, b² is equal to 9 minus 5 4, 6 minus 2 4, 144, b is equal to 12। you have both the information a and b। अब हमारे पास दोनों आ गए, a भी हो गया b भी हो गया। जैसे ही दोनों हो गए तुरंत हम फाइनल आंसर पे आएंगे बेटा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स
इक्वेशन ऑफ ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. That means x square upon a square is what? 13 ना. 13 का स्क्वायर करेंगे बेटा 169 प्लस y square upon b square is what? 144 is equal to 1. Now this is the final answer for your equation of ellipse. Is that clear? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? मजा आ रहा है ना? पढ़ते रहो बेटा. देखो हम लोग जिस पोजीशन में हैं अभी, आपकी ज़रूरत बहुत तगड़ी है और सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए कंपटीशंस टफ होने वाले हैं और कंपटीशंस के लायक अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करोगे, बनाओगे नहीं, तो हमेशा परेशान रहोगे. Okay, now we are going to take next question, that is question number 18. जो नहीं तो 18 की क्या जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज गिवन? सेंटर इज 0,0. इंफॉर्मेशन देखते हैं. 0,0. Major axis on the y-axis, major axis is equal to y-axis, मतलब fix, and passes through the point 3,2 and 1,6. Passes through the point passes through the point 3,2 and 1,6. Is that clear? क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों इसी पे वर्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 to 20. Is that clear? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर इज 0,0. अगर सेंटर 0,0 है तो 100% फिक्स हो गया कि आपका इलिप्स जो है स्टैंडर्ड को ही मैच करेगा. मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस. अगर इसको हम देखते हैं बेटा तो हमें ये पता चल गया कि वर्टिकल इलिप्स है. अब उसके बाद पासेस थ्रू द पॉइंट दिया है. चलो देख लेते हैं बेटा. एक थोड़ा सा पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से हम वर्क करेंगे. राइट ना? अगर डायग्राम को हम देखते हैं बेटे तो यही है. उसने कहा कि 3,2 एंड 1,6, 3,2 एंड 1,6 ऐसे कोई पॉइंट्स दिए हैं. 2 पॉइंट्स कभी भी दे दिया है. राइट ना? 3,2 एंड 1,6 इसी इलिप्स पे लाई करते हैं. अगर 3,2 और 1,6 इलिप्स के ऊपर लाई करते हैं, सरकमफरेंस पे लाई करते हैं, दैट मीन्स पॉइंट 3,2 एंड 1,6 satisfy the equation of ellipse. Yes or no? Yes or no? Sorry, तुम बता दो बेटा. चलो वेरी गुड. अब बात करते हैं, जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आए तो पहला प्रोसीजर हमारा यही होता है कि लेट्स द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यही हमारा आंसर है. हमने मान लिया कि यही इक्वेशन है, तो दैट मीन्स यही आंसर है. और अगर ये आंसर है तो फिर तो डेफिनेट सी बात है कि इस आंसर को 3,2 एंड 1,6 दोनों क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे. तो वही लिखने जा रहा है बेटा. सिंस इट पासेस थ्रू
3, 2 and 1, 6. Therefore 3, 2 से पास करेगा तो 3 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देख लो ध्यान से, सॉल्व करेंगे बेटा. 9/a स्क्वायर प्लस 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. सिर्फ क्या किया, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन में. और 1, 6 से भी पास हो रहा है तो 1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स 1/a स्क्वायर प्लस 36/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसको नाम दे दिया बेटा हमने क्या, इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे.